Hello everyone. Assalamu alaikum. Can you hear me? Okay. So this session, my name is Asad Ijaz Bhatt. Let me introduce myself first. I'm an anthropology instructor at Nearpia. I passed CSS examination first time in 2017, and then twice later as well in 2018 and 2021. In one of these attempts, I had anthropology as an elective, and I tell you this thing with a lot of interest and with some level of disappointment as well that when I took the CSS exam for the first time, which was perhaps in 2020, 20, 2017, I took the last time in 2021. My first attempt was in 2017. I took anthropology as an elective. I didn't take anthropology as an elective. I took it in 2021. Sorry, I'm just all over the place right now. So took my first anthropology attempt in 2021, but uh, took the first time took the CSS exam for the first time in 2017. Didn't get anthropology because nobody ever told me about it. And that's why I think some of these orientation sessions and these sessions that I'd be doing with you on a regular basis now will become ever more important for your sort of understanding on how you should select subjects and what mistakes that I made as a CSS aspirant that you should not make. You should avoid making those mistakes. So I was listening to people, academies, people that I came into contact with, and people who had a certain view of CSS, and that was often a very sort of traditional view of how the examination should be approached and how it should be taken. So nobody ever told me that there is something like anthropology that is very high scoring and very easy to prepare and has some level of overlaps with a lot of other uh, uh, compulsory subjects as you call them. So I never had that idea. I wish that I did for the first two attempts that I took. And the third time I took it in 2021, I got a high score. I think somewhere around 80, and I know somebody who was preparing with me in the same attempt who got an 89 in 2021. I know somebody who got something like an 87 in 2018 and got allocated in one of the top groups. Remember one thing, and I keep telling this to CSS aspirants: if you get an 85 or an 80 or even perhaps high 70s in one optional subject, that gives you such a huge advantage over other candidates, and it helps you cover up for a bad compulsory एग्जाम also कि मैं सीएसएस में कहता हूं कि ये एक नहीं, दो सब्जेक्टों के मार्क्स हैं। दो 80-85 नंबर लेने का मतलब है कि ये दो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ये एक तो सीएसएस में किसी भी एक सब्जेक्ट में 80-85 मार्क्स आने का मतलब है कि इफ यू जस्ट एंड अप पासिंग तो आप मोस्ट डेफिनेटली 640-50 से ऊपर मार्क्स पे ही होगे। और अगर आप मीडियोकर किस्म का इंटरव्यू कर लेते हैं, मीडियोकर से मतलब 180 प्लस, डिपेंडिंग कि उस साल पैनल कौन है, वो कितने मार्क्स दे रहा है, तो इन एवरी लाइकलीहुड इन एवरी लाइकलीहुड आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप टॉप 6 ग्रुप्स में लैंड कर सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। सिर्फ एक 100 मार्क के ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा रखने से जो आपको 80 के अराउंड मार्क्स देने का पोटेंशियल रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो एंथ्रोपोलॉजी रखेगा सबके 80 मार्क्स आ जाएंगे, पर जो इसको बहुत डेप्थ में प्रिपेयर करेगा। तो आज हम बेसिकली उसी डेप्थ की बात करेंगे जिसमें मुझे लगता है कि आपको एंथ्रोपोलॉजी प्रिपेयर करनी चाहिए। बट फॉर स्टार्टर्स, वाई शुड यू हैव एंथ्रोपोलॉजी इन द फर्स्ट प्लेस? तो उसमें 3 या 4 बातें बड़ी अहम हैं समझना।
पहली ये कि बड़ा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है with a lot of other CSS courses, क्योंकि हमें एक जो मुआशरे के अंदर एक मुआशरे के अंदर जो जनरल किस्म की चीजें हैं, जैसे कि कल्चर क्या होता है, जैसे आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, आपके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेवलप होते 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 वो ट्राइब्स थी या चीफडम्स थी, तो उससे आते आते वो मॉडर्न स्टेट तक कैसे आए। अब एक आपका पॉलिटिकल साइंस का पर्सपेक्टिव है नेशन स्टेट की डेवलपमेंट पे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और एक एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि वो स्टेट कैसे इंटरैक्ट करती थी विद पीपल, हाउ डिड इट इंटरैक्ट with the mankind, and how did individuals, people, men, women, individuals, people, humans interacted with those political institutions, and how they comprised those political institutions, or how they composed these wholes that came to be known as either tribes or some kind of chiefdoms or this modern state system. तो मैं एक मिसाल ये देने की कोशिश कर रहा हूं कि एंथ्रोपोलॉजी या इवन परहैप्स सोशियोलॉजी, आई कॉल देम सिस्टर डिसिप्लिन्स, ये एक चीज करते हैं कि ये आपकी इस तरह की जो चीजें हैं ना, जो आपको जनरली एक सीएसएस में हर एग्जाम में डिस्कस करनी चाहिए या करनी है, इवन परहैप्स इस्लामिक स्टडीज में बहुत आपको हेल्प करेगी। जैसे कि एक चीज के दुनिया में आज से 1400 वर्ष पहले जब एक इस्लामिक स्टेट डेवलप हो रही थी, तो उसकी एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिस क्या थी, उसका एंथ्रोपोलॉजिकल मेकअप क्या था, उसके एंथ्रोपोलॉजिकल कंसर्न्स क्या थे, और उस वक्त दुनिया में किस तरह की स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, उन स्टेट्स के कल्चर क्या थे। फॉर इंस्टेंस, व्हाट वाज हैपनिंग इन पर्शिया एट द टाइम, व्हाट वाज द पर्शियन सिविलाइजेशन, उनका स्टेट का मेकअप क्या था, या उसकी स्टेट की फॉर्मेशन के बेसिस क्या थे, what were the cultural perspectives there. अब मैं मुख्तलिफ, I'm just throwing around things but just trying to tell you one thing कि जब आपका एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से आप चीजों को देखना शुरू करेंगे ना एज ए सीएसएस कैंडिडेट, तो वो आपको बहुत सारे कंपल्सरीज और ऑप्शनल्स में आप थिंग्स लाइक कल्चर, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट, व्हाट इज द बेसिस, जो मिडीवल टाइम से या उससे प्री मिडीवल टाइम से कैसे इवॉल्व होती रही है ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव, मॉडर्न कल्चर क्या है दुनिया में। फिर एंथ्रोपोलॉजी की बड़ी इंटरेस्टिंग थेरीज हैं जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ पीपल को स्टडी किया और उनके पेक्यूलियर कल्चर्स क्या हैं उसको स्टडी किया। तो वो वाली मिसालें और वो साइटेशंस और वो केस स्टडीज भी आपके पास मौजूद होंगी जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में साइट कर सकते हैं। तो अभी तक एक बात मैंने समझाने की कोशिश किया, दैट it develops a very very interesting perspective, a new angle for CSS candidates, because political science में आप institutions को या कवानीन को, लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हाउ डू लॉज इंटरैक्ट विद ह्यूमन बीइंग्स, the anthro side of things. Anthro means insan. Or how do institutions or the structure of the modern state interacts with people, and how does that shape their culture, or whether the culture shapes these political institutions or the modern state. ये सब सवालात हैं. These are all anthropological questions, right? तो ये एक ऐसा नजरिया, आपका नया नजरिया बिल्ड करते हैं, मुझे लगता है, जो कि मैं बारहा ये कह रहा हूं कि मुझसे अपनी पहली 2 अटेम्प्ट्स में गलतियां हुई। एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी था और एक वो ओवरऑल उसके ओवरलैप्स थे, वो एक जनरल पर्सपेक्टिव बिल्ड करता था फॉर द एंटायर सीएसएस, और मैंने वो सब्जेक्ट नहीं रखा। हालांकि एक मजे की बात आपको बताता चलूं कि मैंने जब अपना मास्टर्स किया, मैं कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था सीएसएस करने से पहले,
2015-16 में, तो आई टुक ग्रेजुएट लेवल सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी क्लासेस, graduate level classes. So I could have done this very easily. पर चूंकि मैं वो जैसे कहते हैं ना कि हत्थे चढ़ा हुआ था उन लोगों के जो मुझे कहते थे जी वही स्टैंडर्ड एक जो सब्जेक्ट स्वीट है कि आप आईआर रख लो और आप आई लॉ रख लो. Nothing against these subjects. I mean, people who know IR very well, who do this for a living, who have degrees in IR, should always take IR. But just giving you examples कि academies किन subjects को उस टाइम पैडल किया करती थी. तो हमने भी वही सब्जेक्ट्स रख लिए. आई वॉज एन इकोनॉमिस्ट बाय ट्रेनिंग, बट मैंने इकोनॉमिक्स नहीं रखा. मैंने यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हुई थी, मैंने एंथ्रोपोलॉजी नहीं रखी. बाय माय थर्ड अटेम्प्ट I realized that I need to take anthropology. I took it. I scored very, very high with minimal preparation. अब ये मेरी तीसरा point on why you should have anthropology is the time it takes to prepare. CSS में आपको एंथ्रोपोलॉजी से शायद छोटा सिलेबस ना मिले. जैसे एक टाइम पे यूएस हिस्ट्री के बारे में कहा जाता था ना कि जी बाकी हिस्ट्री से उसको एक एज ये है कि उसका सिलेबस बहुत छोटा है. I also teach governance and public policy for CSS, but if I compare governance and public policy also has a very sleek syllabus. But if I compare this guy with GPP, this has an even shorter syllabus. अगर आप में से कुछ लोग मेरे साथ अल्टीमेटली ये कोर्स लेंगे या लेते हैं तो यू वुड रियलाइज वन थिंग विच इज कि मैंने इसके लिए जो स्लाइड्स बनाई हुई हैं, जो नियर पेयर की स्लाइड्स हैं, जो नियर पेयर का जब आप कोर्स लेंगे तो वो स्लाइड्स आपको मिलेंगी, वो टोटल 100-150 स्लाइड्स. अब 150 स्लाइड्स क्या होती हैं? आप यूनिवर्सिटी में अगर एक अपने एक कोर्स की अंडरग्रेड की क्लास में एक प्रेजेंटेशन देते हैं तो 50, 60, 70 स्लाइड्स तो आप उसके लिए बना लेते हैं. तो 100-150 स्लाइड्स, और उन स्लाइड्स, बहुत सारी स्लाइड्स पे देयर जस्ट 3 और 4 सेंटेंसेस रिटन. और लेट मी टेल यू दिस, वो एक कंप्लीट सिलेबस है. हाँ, ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीजें स्लाइड्स में बुलेट पॉइंट्स में लिखी होती है, तो यू नीड टू हैव द राइटिंग एबिलिटी टू बी एबल टू एक्सपैंड ऑन दोस थिंग्स. लेकिन दैट्स अबाउट इट. दैट्स अबाउट इट. अच्छा, मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर एंथ्रो की नेचर क्या है. मैं अभी थोड़ा सा जस्ट रन पास्ट अ फ्यू स्लाइड्स आल्सो, उसमें से बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि एंथ्रो की नेचर क्या है जी. जैसे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की मैंने बार बार मिसाल दी ना, तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की नेचर ये है कि वो बहुत एनालिटिकल है. जब आपने जीपीपी करना है तो आपने बहुत एनालिटिकली लिखना है, क्योंकि दैट्स द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज अ डिसिप्लिन. एंथ्रोपोलॉजी जो एज अ डिसिप्लिन डेवलप हुई है ना, वो हुई है थ्रू समथिंग कॉल्ड एथनोग्राफिक रिसर्च. और हमारे सिलेबस का एक पोर्शन है जिसके अंदर रिसर्च टेक्निक्स या रिसर्च मेथोडोलॉजीज के ऊपर एक पोर्शन है. ठीक है जी. तो जो आपकी रिसर्च टेक्निक्स हैं, सीएसएस में कोई कोर्स ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें रिसर्च मेथड्स को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए. अब ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा. ना आपको ये चीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगी, ना सोशियोलॉजी में मिलेगी, ना पब्लिक एड में मिलेगी, ना गवर्नेंस एंड पब्लिक, ये सारे जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स में नहीं मिलेगी. वो सारे सब्जेक्ट्स किसी ना किसी रिसर्च से डेवलप हुए ना. दुनिया में लोग तहकीक करते हैं, रिसर्च जरीदों में, जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, उनके थ्रू सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स डेवलप होते हैं. हमने सीएसएस का जब एफपीएससी ने सिलेबस बनाया तो उसने वही जो पॉपुलर टॉपिक्स या पॉपुलर थेरीज थी उनको यकजा करके एक जगह पे लाके एक पीडीएफ 1 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया और कहा ये है जी सीएसएस का सिलेबस. दैट वाज अबाउट इट. दैट वाज एब्सोल्युटली अबाउट इट. चलें जी, अंडरस्टूड. अगली बात ये कि उन्होंने कभी ये नहीं डाला कि ये थेरीज किस रिसर्च के थ्रू या किन मेथड्स को अडॉप्ट करके बनी. अब एंथ्रोपोलॉजी एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर रिसर्च मेथड्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च की गई है या क्वालिटेटिव की गई है या एथनोग्राफी है या सो ऑन एंड सो फोर्थ. इनके बारे में मैं अभी क्विकली बात करूंगा, बट अगले लाइव सेशंस और वेबिनार्स में मैं
ज्यादा गुफ्तगू करूंगा हर पार्ट ऑफ द सिलेबस के बारे में इंडिविजुअली। आज तो हम एक जनरल ओरिएंटेशन करें। तो उसकी वजह क्या थी कि ये डाला गया? क्योंकि ये वाहिद डिसिप्लिन है, एक बात को समझिए, जिस पे डेस्क रिसर्च उतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मैंने अगर युगांडा की किसी स्पेसिफिक नॉर्दर्न युगांडा की आज एक ट्राइब के बारे में लिखना है, या समोआ आइलैंड्स के ऊपर एक ट्राइब है उसके बारे में लिखना है, या मैंने जो इनकास थे या मायन एम्पायर थी उसका कल्चर क्या था, वहां पे अब कल्चर के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं कि लोग जब लोगों की शादी होती थी एक कपल की, तो वो लड़की के घर में रहते थे या लड़के के घर में रहते थे या उनके पेरेंट्स के साथ रहते थे या अलग रहते थे, यानी कि उनके रेजिडेंस पैटर्न्स क्या थे। जब शादी होती थी तो लड़की की फैमिली प्रपोज करती थी या लड़के की फैमिली प्रपोज करती थी। तो मैरिजेस कैसे होती थी, क्या लोगों का कि रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे, वर पीपल रिलीजियस, डिड पीपल बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि रिलीजन भी एक हिस्सा है हमारे कोर्स का। उनकी सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, इकोनॉमिक प्रोड्यूस कैसे की जाती थी, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती थी एक दफा प्रोड्यूस हो जाती थी, स्टेट का सिस्टम क्या था। यानी मैं इकोनॉमी, अब मैं आ रहा हूं पॉलिटिक्स पे। क्या एक ट्राइबल सिस्टम था, डिसीजंस कैसे लिए जाते थे, क्या कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते थे, क्या कोई कम्युनिटी के एल्डर्स थे जो सबके बिहाफ पे डिसीजन लेते थे, वॉर टाइम्स के अंदर डिसीजंस कैसे होते थे। अब मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने दुनिया की मुख्तलिफ अमूमी तौर पे अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज के साथ रिसर्च की। उसमें जो सबसे पॉपुलर रिसर्च का मेथड है उसको कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, जिसमें आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, उनके साथ जाके रहना शुरू करते हो और एज एन इनसाइडर उस कल्चर को खुद से एक्सपीरियंस करते हो, इम्बाइब करते हो, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। तो एक बहुत सिस्टमैटिक और मेथोडिक वे से आप उस कल्चर को, उस कम्युनिटी को, उनके वेज ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो। तो जितने मार्गरेट मीड और क्लिफर्ड गीड्स और ये सारे जो फ्रांस बोआस, ये जो बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनके थेरीज हमारे सिलेबस में शामिल हैं, इन सब ने दुनिया में कोई ना कोई कम्युनिटी पिक की, उसमें रहे। दिस मेक्स दिस डिसिप्लिन incomparably more interesting than any other discipline in the world. And I say this with immense amount of conviction. Imagine somebody living in the US, a white man carrying that white man's burden, travels to South America, starts living with a community that now traces its descent from the Mayan Empire or the Incas or whatever. How interesting would that be? And that's exactly what anthropologists have done. They've traveled across the entire stretch of the globe and they've lived with communities. और उसमें फिर बहुत सारी बातें, एक हम उसको बोलते हैं एम, एक को बोलते हैं एटेक, क्या आप एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव लेते हो उस कम्युनिटी के बारे में या एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव लेते हो, बिकॉज यू आर लिविंग विद देम, बट देन यू आल्सो हैव योर रिसर्चर्स बायसेस दैट यू ब्रिंग इनटू दैट रिसर्च। तो ये सारी गुफ्तगू मैं क्यों कर रहा हूं रिसर्च के बारे में, इसलिए कि ये जो सीएसएस का कोर्स डेवलप हुआ है वो बड़ा डिक्टेटेड है इस बात से, वो बड़ा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है इस बात से, वो इसलिए वो बड़ा स्ट्रांगली कंडीशनड है इस बात से, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज, वो इसलिए कंडीशनड है इस बात से कि हमने ये डिसिप्लिन बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है, और थ्योरी जो डेवलप हुई है वो उसकी बुनियाद ही ये है कि वो किस तरह की रिसर्च से डेवलप हुई। उसमें जो रिसर्च मेथड्स हैं वो इतने रिच हैं और वो व्यूज ऑफ दैट कल्चर को इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं कि रिसर्च मेथड्स के ऊपर गुफ्तगू होना बहुत जरूरी थी। और ये बात यहां से शुरू हुई कि जैसे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एनालिटिकल है, तो एंथ्रो की नेचर क्या है? एंथ्रो की नेचर है थ्योरेटिकल। इसलिए अगर एंथ्रो में अच्छे मार्क्स लेने हैं और इस कोर्स को एस करना है,
So you need to have a very, very strong grip on theory. अच्छा, ये ना सिर्फ के रिसर्च मेथड्स पे फोकस है, चूंकि दिस सब्जेक्ट इज वेरी थ्योरेटिकल, और इसलिए इट बिकम्स ऑब्वियस कि रिसर्च मेथड्स और टेक्निक्स पे फोकस होगा। बल्कि ये बात भी इस सब्जेक्ट को एक वहदत हासिल है सीएसएस के बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत, कि ये वाहिद सब्जेक्ट, एंड आई टेल यू दिस अगेन विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, that this is the only subject in which the theories and the theorists are added separately as part of the syllabus. दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या है कि अगर तो कहीं पे थेरिस्ट के नाम से एक सेपरेट सेक्शन बनाया गया है तो वो सिर्फ फिर थेरिस्ट्स ही हैं। अगर थेरी के नाम से, जो कि अमूमी केस है कि थेरीज के नाम डायरेक्टली लिखे जाते हैं, जैसे पब्लिक एड में, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में, जिन सब्जेक्ट्स की थेरीज हैं सीएसएस में, या इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब इंटरनेशनल से मैं इसकी चले आईआर के स्टूडेंट की मिसाल देता हूं कि वहां पे सैम्यूल पी हंटिंगटन नहीं लिखा होगा सीएसएस के सिलेबस में, या मेयर शीमर नहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको नियो रियलिज्म मिलेगा, रियलिज्म मिलेगा। यहां पे आपको ये नजर आएगा कि जहां भी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाई जा रही है वहां पे थ्योरी को अलग पढ़ाया जा रहा है और थेरिस्ट को अलग पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये भी आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वही बात कि चूंकि एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वहां पे रिसर्चर की पोजिशनैलिटी, उसकी अपनी पोजीशन क्या है। अब मैं हूं असद इजाज बट मेरी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन एंथ्रोपोलॉजी। अगर मैं रिसर्चर हूं और कल को मैं जाके इंडिया की स्टेट केरला के अंदर कम्युनिटीज के साथ रिसर्च करना चाहता हूं, तो मेरी पोजिशनैलिटी जानना बड़ा जरूरी है कि मैं पाकिस्तानी हूं। ये पोजिशनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि इंडिया से हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक डायनेमिक पॉलिटिकल डायनेमिक एग्जिस्ट करता है। फिर मेरी एक आइडेंटिटी है कि मैं मुसलमान हूं, तो शायद इंडिया में मैं जिस कम्युनिटीज के साथ एंगेज कर रहा हूं उनका रिलीजन हिंदू है। मैं मिसालें दे रहा हूं कि रिसर्चर की अपनी पोजिशनैलिटी, या वो खुद कौन है, या उसकी अपनी आइडेंटिटी क्यों अहम है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट identities of people and how those identities form up a culture, and how culture then determines a lot of other things, like for instance your state structure or your economic distribution, right? तो पॉइंट मैं सिर्फ ये मेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे अगर खाली आप सिलेबस के हिस्सा सिर्फ थेरीज को बनाते तो वो इनफ नहीं था। आपको फ्रांस बोआज, मार्गरेट मीड, सैमुअल पी हंटिंगटन की जिंदगी को भी जानना जरूरी है कि वो कौन थे, कहां पैदा हुए, उनकी डिग्री क्या थी, उनका रिसर्च आइडियाज क्या थे, वो कैसे डेवलप हुए। तो एक हिस्सा सिलेबस का हो गया रिसर्च का, एक हिस्सा सिलेबस का हो गया, एक हिस्सा सिलेबस का हो गया थियरिस्ट्स का, और एक हो गया थेरीज का। अब इसका अगर आप सेक्शन 6 देखें यहां पे, इफ यू कैन सी माय स्लाइड्स, कैन यू सी माय स्लाइड्स जी एवरीबॉडी? अच्छा, आई थिंक यू कैन। सो अगर इसका आप सेक्शन 6 देखें तो आपको नजर आएगा कि उसमें थेरीज के भी नाम हैं, पर एट द सेम टाइम थेरिस्ट के भी नाम है। मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, एल्फ्रेड क्रॉबर, रैडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की, क्लिफर्ड गियर्स, तलाल असद, अकबर एस अहमद, हु इज अ पाकिस्तानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो आपको नजर आ रहा है, और उसके बिल्कुल नीचे आपको थेरीज भी नजर आ रही है। क्लासिकल थेरीज, डीजेनरेशन, एवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजन, मॉडर्न थेरीज। अब उन्होंने क्लासिकल और मॉडर्न को सेपरेट कर रखा है, और उसके नीचे आपको एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स का भी एक पूरा सेक्शन नजर आता है कि सैम्पलिंग क्या होती है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक और चीज देखिए कि ऊपर जो लिखा है ना, एथनिसिटी एंड रेस, सोशो कल्चरल चेंजेस, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, ये सब वो हिस्से हैं जो इन्हीं थेरीज से निकले हैं।
लेकिन एग्जामिनर ने उनको सिलेबस के अलग अलग हिस्से बनाए। तो एक दफा आपकी थेरीज के ऊपर बहुत अच्छी ग्राउंडिंग होगी, और ना सिर्फ ग्राउंडिंग होगी, आपको थ्योरेटिकली लिखना आ जाएगा, क्योंकि थेरी की एक अपनी लैंग्वेज होती है। तो आप बाकी पार्ट्स ऑफ द सिलेबस को भी अच्छा कर पाएंगे। अब मैं अक्सर स्टूडेंट्स को मिलता हूं, ये बातें करना इसलिए अहम है कि मैं स्टूडेंट्स को मिलता हूं, कहते हैं सर हम थेरी ना भी करें तो चॉइस है। अब मैं आ रहा हूं साथ साथ पेपर के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि 7 में से 4 सवाल करने हैं सर, या हर सेक्शन के अंदर 2 सवाल हैं, उसमें चॉइस पे हमने एक करना है, तो हम थ्योरी का सवाल छोड़ देंगे? नहीं भाई, नहीं, डोंट डू दैट। हमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी आती है अलग से, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी आती है अलग से, हमें सोशो कल्चरल चेंज आता है, एथनिसिटी एंड रेस आती है, तो हमें क्या जरूरत है जी थ्योरी में इंडल्ज करने की या रिसर्च मेथड्स में इंडल्ज करने की? नहीं भाई, जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि ये सब टॉपिक्स भी उन्हीं थ्योरी से मर्ज किए हैं, तो इनको आप कर तो लेंगे। अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं सेपरेटली, आप इनको, उन क्वेश्चंस को कर तो लेंगे, पर आप उनको उतने आसान तरीके से नहीं कर पाएंगे। You would not be able to do justice to those questions without one referring to again and again to how social anthropology emerged or how urban anthropology emerged. Whose work was it? What kind of research methods were applied when, for instance, talking about economic organization, आपको यहां नजर आ रहा होगा टॉपिक कॉल्ड इन द ब्रैकेट्स कॉल्ड सब्सटैंटिविज्म वर्सेस फॉर्मलिज्म। अगर मैंने बात करनी है कि ये कार्ल पोलानी का काम था, सब्सटैंटिविज्म वर्सेस फॉर्मलिज्म, तो आई नीड टू राइट एटलीस्ट 2-3 लाइंस। बेशक मैं सवाल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का कर रहा हूं, थ्योरी का या कार्ल पोलानी का सवाल नहीं कर रहा, पर जब मैं कार्ल पोलानी की लाइफ के बारे में भी अपने आंसर में लिख रहा हूँ, उसको काले मार्कर से लिख रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ कार्ल पोलानी के नाम को, उसकी थ्योरी के नाम को, फिर मैं उसकी थ्योरी को इन डिटेल डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे थ्योरी भी आती है। फिर उसने रिसर्च मेथड्स क्या अडॉप्ट किए थे टू अराइव एट द कंक्लूजंस एट व्हिच ही अराइव्ड। तो एक बात समझिए कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एंथ्रोपोलॉजी उसको भी आती है जिसको थ्योरी नहीं आती, और सवाल वो भी कर लेगा, लेकिन वो 20 में से 12 नंबर वाला आंसर करेगा। लेकिन 20 में से 16 नंबर वाला आंसर जिस बंदे ने एंड पे पास करना है और उसकी एलोकेशन भी होनी है, वो है एंथ्रोपोलॉजी में। या 100 में से 80 नंबर वाला जवाब वो है जिसने 80 मार्क्स लेने हैं 100 में से, जिसमें सिलेबस को आप साइलोज में ना करो, आप सिलेबस के ये जो मूविंग पार्ट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट कर पाओ। और इनको कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपकी थ्योरी पे ग्राउंडिंग हो, और उस थ्योरी को फिर आपको अर्बन एंथ्रोपोलॉजी का सवाल आए तो आप उसकी थ्योरी साइट और बार बार कोट करो, आपको सोशल का आए तो आप वहां पे कोट करो। जैसे कि मैं कह रहा हूं, दिस सब्जेक्ट इज वेरी थ्योरेटिकल। कोई सवालात हैं अभी तक चैट में कि नहीं? जरा देख लीजिए। अच्छा जी, किसी ने कहा है कि सर ट्रेंड इज चेंजिंग, एग्जामिनर, सर सीएसएस में एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड। ओके, I have a few questions here, so let me address them one by one. अच्छा जी, sir, how to prepare for changing trends in anthro paper? अच्छा, okay. um, सर मैं एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज मैं एंथ्रोपोलॉजी में बैचलर्स कर रही हूँ। ओके, मैं क्वेश्चंस के ऊपर अभी क्विकली बात करता हूँ। आई डोंट थिंक, एज फार एज मैं, कुछ लोगों ने यहाँ बात की है कि सर एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। मुझे नहीं लगता, एब्सोल्युटली नॉट, मुझे नहीं लगता। उसको, हम जो नेक्स्ट वेबिनार करने वाले हैं वो पास पेपर्स के ऊपर ही होगा। मैं तफसील से पिछले 3 या 4 साल या 5 साल के पेपर्स डिस्कस करूंगा। आई होप
most of you will join me, जिसमें मैं बात आपको एविडेंस के साथ दिखाऊंगा कि एग्जामिनर जो सवालात पूछ रहा है वो नहीं बदले। लेकिन आप एक बात समझिए, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सीएसएस से कि बहुत ज्यादा मिलते जुलते सवाल। एग्जामिनर मिमिक नहीं करता पिछले सालों के पेपर को। इस बात से मेरी मुराद ये है कि अगर आप या मैं कल को एग्जामिनर हो, स्टेप इनटू द शूज ऑफ द एग्जामिनर एंड ट्राई टू डीबग दिस। अगर कल आप और मैं एग्जामिनर हो तो हम क्या करेंगे भाई? सवाल तो ये है, उसने भी तो नए सवाल बनाने हैं ना, उसकी भी तो आंसरेबिलिटी है कि भाई तुम पिछले 10 साल से सेम क्वेश्चंस देते जा रही हो या उसी तर्ज के सवाल देते जा रहे हो, तो उसने कुछ ना कुछ तो नया करने की कोशिश करनी है। एक बात। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। एंथ्रोपोलॉजी के जो प्रोफेसर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, उनको राब्ता किया जाता है। लेट से 2016 से 18 प्रोफेसर एक्स वो पेपर बनाता था कायदे आजम यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, उस यूनिवर्सिटी का एक नजरिया होगा एंथ्रोपोलॉजी पे, एक उनकी सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव विजडम होगी उस डिसिप्लिन के बारे में उधर एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट में। तो उस तर्ज के सवाल बनते थे। 2019 से 2021 तक लेट से वो एफपीएससी ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब या लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या लम्स लाहौर के किसी इदारे को कह दिया कि आप बनाएं जी पेपर, तो उनके एंथ्रो के डिपार्टमेंट या उधर किसी एंथ्रो के प्रोफेसर को ये ठेका, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, तो वो सवाल उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी इस हवाले से बात है। आप सुनिए ये बात गौर से कि द डिसिप्लिन इटसेल्फ या सीएसएस का वो सब्जेक्ट हैज मीनिंगफुली चेंज्ड। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। The dominating flux of the discipline is pretty much proceeding at progressing at the same pace. आप एक बात समझिए कि ना, मैं सीएसएस का किसी सब्जेक्ट के बदलाव को दो चीजों से समझता हूं कि वाकई बदलाव आया है। या तो एफपीएससी सिलेबस बदले जो उसने लास्ट 2016 में बदला, या उस डिसिप्लिन में, गौर से सुनिएगा, आउटसाइड द एफपीएससी सिलेबस कोई मीनिंगफुल चेंज आए। ये सारे डिसिप्लिन्स वो हैं, गौर से सुनिएगा, और ये थेरीज को अगर आप देखें तो ये सब डिसिप्लिन्स वो हैं। ये सारी थेरीज 1970s के बाद इवॉल्व ही नहीं की। पिछले 30 साल में शायद ये अकबर एस अहमद को या एक दो लोगों को निकाल दें तो कोई भी इनमें से थेरी ऐसी नहीं है जो पिछले 25 या 30 साल में आई है या एडवांस हुई है। गूगल कर लें आप सबको सेपरेटली, जिसमें कोई मेजर चेंज आया हो। So theoretically, anthropology as a discipline has not advanced. The CSS syllabus has not changed. हाँ, एक छोटा सा चेंज, जैसे मैंने कहा कि पेपर कौन बना रहा है उस बुनियाद पे आता है। एग्जामिनर पिछले सालों के पेपर से थोड़ा सा चेंज भी करने की कोशिश करते हैं। नेचुरली उनके ऊपर प्रेशर्स भी हैं एफपीएससी से कि भाई वही सवाल हर साल ना डालते जाओ। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। एक साथ ही सवाल पूछा गया कि सर अभी चैट में कि स्कोरिंग ट्रेंड बड़ा बदल गया है, एंथ्रोपोलॉजी अब वो नंबर नहीं देता। मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक एक्सरसाइज करें, अपने अपने सोशल सर्कल में, और अपने सोशल सर्कल में पहले लोगों से पूछें कि उन्होंने टाइम कितना लगाया था, क्या मुकम्मल तैयारी की। अक्सर हम डीएमसीज उन लोगों की देख रहे होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते, और रिमेंबर सीएसएस में 80% बच्चा सीरियस कैंडिडेट नहीं है। और एग्जामिनर रिपोर्ट्स पता नहीं, मुझे तो अब वेबसाइट पे मिलती नहीं है, मुझसे जरा शेयर करें अगर आप लोगों को मिल रही हैं, नियर पीयर से शेयर कर दें या मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें या मुझे ईमेल कर दें कि रिसेंट एफपीएससी की एग्जामिनर रिपोर्ट्स लास्ट कौन सी आई हैं। खैर वो बड़ी जेनेरिक सी होती हैं, स्कोरिंग ट्रेंड का इतनी तफसील से वहां पता नहीं चलता, पता डीएमसी से ही चलता है, या वो जो क्या बोलते हैं ऑनलाइन मार्कशीट जो भी। आप सबको मैं एक टास्क देता हूं, अपने सर्कल से 5-5 डीएमसीज इकट्ठी करें उन कैंडिडेट्स की जो आपको लगता है कि सीरियस कैंडिडेट, जिन्होंने सीएसएस के 12 सब्जेक्ट्स को उतना वक्त दिया जितना वो सब्जेक्ट डिजर्व करते थे, और उनके
उन्होंने सीएसएस फेल भी किया, तब भी उनके 600 के आसपास मार्क्स थे, उसको मैं सीएसएस कैंडिडेट समझता हूं। इसके 510 मार्क्स थे या 520 मार्क्स थे या 480 मार्क्स थे, उसको मैं सीरियस कैंडिडेट नहीं समझता, क्योंकि वो पास होने से बहुत दूर है। तो चूंकि वो सब सब्जेक्ट्स में बुरा परफॉर्म कर रहा है, मेरा इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो सब सब्जेक्ट्स में बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वो एंथ्रोपोलॉजी में भी बुरा परफॉर्म करता है, तो उसकी बुनियाद पे क्या आप ये कह सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजी मार्क्स नहीं दे रहा? मैं तो नहीं कहूंगा। मैं जब सीएसएस कैंडिडेट था तो मैं इस पे कैसे तज्जिया करता था कि मैं अपने सोशल सर्कल से 5-7 सीरियस कैंडिडेट ढूंढता, वो कहता था यार जो आपने भाई पिछले सालों की अटेम्प्टें दी हैं उनके जरा मुझे अपनी मार्कशीट तो शेयर करें। जो लोग कंफर्टेबल होते थे वो शेयर कर देते थे। उससे मुझे पता चलता था कि एग्जामिनर किन सब्जेक्टों में क्या मार्क्स दे रहा है। एंड डोंट फॉल फॉर अनदर ट्रैप दैट एकेडमीज एंड इंस्टीट्यूशंस डू। द अदर एक्सट्रीम इज कि वो सिर्फ टॉपर्स की मार्कशीटें शेयर कर रहे होते, उसको भी मत देखें। दैट्स ऑल्सो मिसलीडिंग। वो टॉपर एक ही है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, डोंट लुक एट देम। They don't represent the general trends of a certain course or overall CSS. एक अच्छे सीरियस मीडियोकर कैंडिडेट जो चाहे फेल हो गया हो सीएसएस में, उसने पास ना किया हो, उसकी मार्कशीट देखिए, 5 मार्कशीट मंगवाए जिनमें एंथ्रोपोलॉजी हो किसी में। डू दिस एक्सरसाइज, टॉक टू पीपल अराउंड यू एंड देन शेयर देम विद मी। और फिर उसमें आपने मुझे मीनिंगफुली, जिस तरह हम डेटा एनालिसिस करते हैं, करके दिखाना है कि सर ये कैंडिडेट था या इसी लेवल का एक और कैंडिडेट था, उसके 2019 में 70 आए थे और 2022 में उसी तरह के एक और कैंडिडेट के 40 आए हैं, फिर तो मैं मान लूंगा कि मार्क्स नहीं आते। मैं टीचर हूं मैं, लेकिन एक्टिव सीएसएस कैंडिडेट नहीं हूं। जब मैं आप लोगों की जगह था ना, तो मेरे पास पुरानी डीएमसीज हुआ करती थी, मैं ये तज्जिया रेगुलर करता था। तो मैं आप लोगों को ये चैलेंज थ्रो करता हूं, टेक इट एज एन असाइनमेंट कि सब हर स्टूडेंट 5 डीएमसीज इकट्ठी करे जिसमें एंथ्रोपोलॉजी है मुख्तलिफ सालों से, और देखे कि क्या ट्रेंड वेरी किया है कि नहीं। लेकिन टॉपर्स नहीं, मैं टॉपर्स भी नहीं कह रहा, टॉपर्स को मत देखें। टॉपर के आए होंगे 85 मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी में, तो मैं तो नहीं कहता कि सबके 85 आएंगे, या मैं तो नहीं कहता कि वो जनरल ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। नॉट एट ऑल। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल दिस सब्जेक्ट नीडलेसली। ऑल आई एम सेइंग इज, हाँ, एक बात यहां पे किसी ने चैट में की कि सर देयर इज एन अपटेक। बिल्कुल अपटेक है, बिल्कुल अपटेक है इस सब्जेक्ट में, इसमें कोई शकूको शुबात नहीं है। आप ये देखिए कि जिन साहब ने मुझसे ये सवाल पूछा था, मैं ये पहले ही जब ये स्लाइड्स बनाई तो मैंने पहला स्टेटमेंट ही ये लिखा कि सीएसएस में एक जनरली नोन बात ये है, आप सब जानते हैं, वो नोन बात यह है कि किसी सब्जेक्ट को जब ज्यादा लोग लेना शुरू करते हैं तो वो किसी साल में वो डेंजर जोन में आ जाता है। और उसकी डेंजर जोन में आने की पहचान पता है क्या होती है? कि वो किसी साल हिट होता है, टारगेट होता है। चले आप बता दें जी, एंथ्रो अभी तक किस साल में आई लॉ, जेंडर या यूएस हिस्ट्री बना है? मैं बता सकता हूं। यूएस हिस्ट्री 2018 में उसके साथ क्या हुआ था, 2019 या 20 या किसी एक साल में आई लॉ के साथ क्या हुआ था, 2016 में हर बंदा टाउन प्लानिंग जैसे सब्जेक्ट में फेल हुआ था, अब नहीं होता। हाँ, उस पे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर एंथ्रो अभी तक कभी हिट टारगेट उस तरह से बुचर नहीं हुआ। ये तो और भी खतरे की बात है कि आने वाले सालों में हो सकता है। लेकिन मैं इस बात को भी, मैं सारे आपके सवालात को खुद सवाल पूछ के जवाब भी साथ साथ देता जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता दैट्स द केस। उसकी वजह ये है कि जरा स्टेटिस्टिक्स को देखें, कितने लोग सीएसएस का पर्चा देते हैं? 15,000, 20,000। जाएं किसी एकेडमीज में नियर पेयर पे, आज भी एंथ्रो की क्लासेस में एंटर हो, पूछे नियर पेयर से कितने लोग, मैं एंथ्रो का वाहिद इंस्ट्रक्टर हूं नियर पेयर पे। सादा सा लिटमस टेस्ट है ना। मेरी क्लासेस में इस वक्त मेरी लाइव चैट पे 15 लोग सुन रहे हैं। ये लाइव चैट अभी आईआर की, इकोनॉमिक्स की, इवन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एड की होती तो इस कंसिडरेबली ज्यादा लोग होते। आप एकेडमीज में क्लासेस में जाएं,
आपको पता चल जाएगा कितने लोग एंथ्रोपोलॉजी आज भी रखते हैं। 5-10 से ज्यादा लोग आपको, 15 से ज्यादा, 20 से ज्यादा लाहौर की टॉप एकेडमीज में, वर्ल्ड टाइम्स तो नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी, मैंने इन सब जगहों पे पढ़ाया। मुझे पता है कि एंथ्रो का कोर्स यहाँ तो ऑफर होता ही नहीं है, क्योंकि इनफ स्टूडेंट्स हैं ही नहीं। आज भी नहीं होता, 2024 में भी नहीं होता। जाए इन सब एकेडमीज के रोस्टर्स पे देख लें कि एंथ्रो ऑफर होता है। और आप लोगों की मजबूरी क्यों है कि आपने नियर पेयर जैसी अच्छी जगह और मेरे जैसे बेस्ट इंस्ट्रक्टर से ये कोर्स पढ़ना है। वो मजबूरी आपकी इसीलिए बनी है कि ये जो सो कॉल्ड बड़ी, सबसे बड़ी एकेडमीज हैं, ये अभी भी ऑफर इसलिए नहीं करती बिकॉज इट डजंट मेक, इट्स नॉट कमर्शियली वायबल फॉर देम टू डू सो। सीएसएस का तज्जिया कैसे करना है, देखिए स्मार्ट वर्क मैं आपको वो सिखा रहा हूं। खाली किताब पढ़ने से सीएसएस नहीं होता, वरना तो सब ही कर लें। किसी दिन मैं एग्जाम अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे बड़ी बात करता हूं, वो करेंगे एक जनरल जो व्यू सीएसएस का है। आज मैं सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी पे फोकस्ड हूं। तो मुझे एक बात समझाइए भाई कि उन एकेडमीज में, उन जगहों पे क्यों है, क्यों अगर इतनी दुनिया एंथ्रो ले रही है, we don't have statistics. FPSC is an opaque institution like a lot of bureaucratic institutions in Pakistan. Agreed. तो इतनी दुनिया अगर फिर भी आपका और मेरा ये खदशा है ना, हमारे पास नंबर्स तो नहीं कि बहुत दुनिया ले रही, तो उसका लिटमस टेस्ट क्या है? वो उसका लिटमस टेस्ट हियर से नहीं है कि आपका दोस्त, आप इस्लामाबाद की किसी चाय प्लेस पे बैठे थे, उसने कहा यार आजकल हर बंदा एंथ्रोपोलॉजी लाई जा रहे हैं, एंड यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अच्छा दिस इज ट्रू। नो, डोंट जनरलाइज इट लाइक दिस। CSS में information is very scarce, it's hard to find, and you have to infer a lot of things. और कैसे infer करना है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन इस्लामाबाद की सारी एकेडमीज का जरा फेरा लगाएं, उनसे पूछें जी एंथ्रोप ऑफर करते हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ऑफर करते हैं, जूलॉजी ऑफर करते हैं? पता चल जाएगा आपको कि कितनी दुनिया आज भी लेती है। और अगर दुनिया नहीं ले रही तो याद रखें कि इसके टारगेट टारगेट देखिए, पाकिस्तान में इन इदारों का देर इज नो मेथड टू देयर मैडनेस। कल सुबह किसी को भी टारगेट कर सकते हैं और आप असद इजाज भट्ट का गिरबान पकड़ सकते हैं कि सर आप झूठ बोल रहे थे। हाँ मैं झूठ बोल रहा था, अगर ऐसा होता है तो आप यही समझ लें। बट none of us can actually predict. The only ways we could predict the scoring trend is by things we are saying. There is absolutely things I am saying, there is absolutely no other way. If there is, आप बता दें। अगर आपने कुछ इनोवेट किया आप बता दें। या तो आप लोगों से मार्कशीटें मांग सकते हैं, या एकेडमीज जा सकते हैं, नियर पेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं कि कितने लोगों ने बाकी सब्जेक्ट रखा है। आप नियर पेयर से ही रिक्वेस्ट कर लें, छोड़ें बाकियों को, कि जी आपके जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें कितने लोग एंथ्रो रखते हैं और कितने लोग बाकी सब्जेक्ट रखते हैं। चले नियर पेयर पे तो मेरे जैसा इंसान पढ़ा रहा है, शायद लोग इस वजह से एंथ्रो ज्यादा ना रखते हो कि टीचर अच्छा नहीं है, इसलिए फिर बाकी एकेडमीज में जाके देख लें। चलो टीचर अच्छा नहीं है किसी एकेडमी में, इसलिए बहुत ज्यादा लोग क्लास में नहीं आए, बट व्हाट अबाउट एकेडमीज जहां पे वो सब्जेक्ट आज भी ऑफर नहीं होता? और ये कोई एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री या जूलॉजी जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है कि वो इसलिए ऑफर नहीं होता कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है इसलिए वो नहीं लेना चाहते। इसके लिए ये दिस इज जस्ट लाइक IR और सोशियोलॉजी और GPP, इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसलिए हर बंदा ले सकता है। फिर क्यों नहीं लेते लोग? आज तक इतने ज्यादा लोगों ने क्यों नहीं लिया? उसकी एक लंबी बहस है, बात की जा सकती है। एक सीधा सा आंसर जो मुझे बहुत लोगों से मिला, वो कहते हैं सर नाम इतना मुश्किल है, हमने कभी जहमत ही नहीं की खोल के देखने की। नाम से ही लगता है कि ये कोई बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है या कोई बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट। एंड बिलीव यू मी, स्टूडेंट्स हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, शायद आप में से भी कुछ लोगों की हो। इट मे साउंड वेरी सिली और वेरी सिंपलिस्टिक, बट दिस इज हाउ पीपल थिंक। A lot of CSS candidates think like this. Anyhow, तो मुझे नहीं लगता कि स्कोरिंग ट्रेंड, हाँ अपटेक हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने बंदे 2017 में लेते थे 2024 में भी उतने लेते, अपटेक हुई है। इट्स बिन अ स्लो अपटेक। वो अपटेक मेरे जैसे लोगों की वजह से ही हुई है,
मैंने 2 एकेडमीज में खुद शुरू कराया एंथ्रो भी। 2019 में मैंने कुछ एकेडमीज में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी शुरू कराया। 2016 में ऐड हुआ था, जीपीपी एकेडमीज ऑफर नहीं करती थी। तो नेचुरली जब वो कोर्स एकेडमीज ऑफर करती है, तो जब नया बच्चा दाखिला लेने आता है, वो फॉर्म फिल कर रहा होता है, जी आपने ऑप्शनल का रखनी है, एकेडमी का एडवाइजर बैठा होता है, वो कहता है बेटा एंथ्रोपोलॉजी रख लो। तो अगर एंथ्रोपोलॉजी में उस साल पूरे पाकिस्तान में 15,000 में से 500 लोगों ने बैठना था, तो 800 बैठना शुरू कर देते, 1000 बैठना शुरू कर देते, 1200 बैठना शुरू कर देते। लेकिन आईआर और आईएलओ वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि 15,000 में से 7,500 लोगों के पास वही एक ऑप्शनल है हर बंदे के पास। एवरीबडी 15,000 में से 8,000 लोगों ने 200 मार्क्स की कैटेगरी में इंटरनेशनल रिलेशंस रखा हुआ है। That's not anthropology. That could be IR or that could be some other subject, but that's not the course that I am teaching. I hope this is understood. Let me look at more questions. I may have gotten more questions. No, I think I haven't. जरा चैट में आप लोग जो लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं वो बताते जाइए। तो मुझे लगता है स्कोरिंग ट्रेंड पे माय एनालिसिस इज दैट द सब्जेक्ट इज स्टिल इन द सेफ जोन एज आई हैव cited that in the third bullet point here. सिलेबस पे मैं काफी तफसील से बात कर चुका हूँ। नेचर क्या है, थ्योरेटिकल होना चाहिए। अच्छा, सोर्सेज के ऊपर मुझसे बात होती है, सर तैयारी कैसे की जाए। नियर पेयर पे अगर आप ये कोर्स लेते हैं या आप ऑलरेडी ले रहे हैं, तो आपको पता है कि मैंने मैंने शुरू में भी अभी बात की कि 100 से 150 के करीब स्लाइड्स होंगी, उनको तफसील से पढ़े। उन स्लाइड से आपने करना यह है कि अपने नोट्स बनाने हैं। सो कीप अ पेपर एंड पेन इन हैंड, पैराग्राफ फॉर्म में लिख लें, बुलेट पॉइंट्स में लिख लें, जो आपका तरीका है, जिस तरह आपको हेल्प होती है आप उस तरह लिखें। अपने नोट्स बनाएं और एक स्लाइड से ये होगा कि एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद मैं बार बार सीएसएस बच्चों को ये रेकमेंड करता हूँ फॉर अदर 11 सब्जेक्ट्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, जब आप हर टॉपिक को करते हैं ना, तो एक टॉपिकल रिसर्च करें कि उसी टॉपिक को, अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कर रहा हूँ या अर्बन एंथ्रोपोलॉजी कर रहा हूँ, और उसमें मैं कोई सब टॉपिक पढ़ा हूँ, तो उस सब टॉपिक को मैं गूगल करूँ। आजकल तो वैसे ही चैट जीपीटी की एज है ना, और सीएसएस में कोई प्लेजरिज्म तो पकड़ा नहीं जाना चैट जीपीटी का। तो आपकी एक क्लिक पे दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन है। तो आप हर टॉपिक को सेपरेटली गूगल करें, और वो नोट्स जो आप या तो अपने हाथ से लिख रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप कर रहे हैं, उन अपनी उस रिसर्च से ऑगमेंट करते जाएं वो चीजों को जो कि मैंने अपने स्लाइड्स या हैंड रिटन नोट्स में दी। अच्छा, इस कोर्स में एक जो यूनिक चीज आपको मिलेगी कि मैंने एक लॉन्ग नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं अपनी कोर्स की वेबसाइट पे, जो कि मेरे नहीं है। वो लॉन्ग नोट्स मेरे एक बैचमेट जिनके एंथ्रोपोलॉजी में बड़े हाई मार्क्स आए थे बैक इन द डे, मैंने उनके नोट्स उनसे लेके अपने इस कोर्स का हिस्सा बनाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके। और एक मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं जो बहुत कंडेंस नोट्स हैं। उसको आप समझ लें कि उसमें बुनियादी तौर पे सिर्फ बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग्स हैं, लेकिन उसमें मैंने किया ये हुआ है कि 15 या 20 पेजेस में हैंड रिटन मैंने पूरा सिलेबस एंथ्रोपोलॉजी का कवर किया हुआ है। ठीक है, ये 3 बुनियादी सोर्सेज हैं। एक दो किताबें मैंने थेरीज के ऊपर भी अपलोड की हुई हैं कोर्स वेबसाइट पे। तो इन किताबों के थ्रू और अपनी थोड़ी सी टॉपिकल रिसर्च के थ्रू आप ट्वीक्स भी करते जाएं स्लाइड्स को और मेरे नोट्स को, और उनमें इजाफा भी करते जाएं। इन चारों पांचों सोर्सेस से मिला के आपके अपने नोट्स बनने चाहिए, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर वो टाइप्ड है ना, तो वो 40 पेजेस से ऊपर ना हो। अगर वो हैंड रिटन है, क्योंकि हैंड रिटन को मैं कह लें कि एक टाइप पेज, अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है तो वो 2-2.5 साइड्स ऑफ हैंड रिटन नोट्स पे आता है। तो अगर 40 टाइप पेजेस का मतलब है 100 हैंड रिटन पेजेस। तो 100 पेजेस से ज्यादा किसी 100 मार्क के सब्जेक्ट्स के आपने नोट्स नहीं बनाने हाथ से लिखे हुए। तो मेरी स्लाइड्स, किताबें और मेरे नोट्स, इन सबको मिला के आपने अपने नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा मैं कोई सोर्स रेकमेंड नहीं करता। हाँ, इसमें सोर्सेज बहुत, जब आप ऑनलाइन रिसर्च करेंगे तो उसमें कभी कोई जर्नल आर्टिकल भी मिल जाएगा, कभी कोई इंटरनेशनल किसी इदारे की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, कभी कोई रिसर्च पेपर मिल जाएगा, और कभी कोई अखबारी आर्टिकल, डॉन के बड़े अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे,
न्यूयॉर्क टाइम्स के, वॉशिंगटन पोस्ट के, वो सब आपका इसका हिस्सा बनते जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, तो ये है जी हाउ टू प्रिपेयर वाली बात। अब इसमें मैंने यहां पे वही बातें जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, एंड आई रैप दिस अप वेरी वेरी क्विकली नाउ। आई थिंक हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 घंटे से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने सिलेबस जब खोलना है तो कोशिश करें कि आप थेरीज प्रिपेयर करें। वैसे जो अगर आप मेरा ये कोर्स लेंगे और लेते हैं तो उसमें आपको नजर आएगा कि मैं सिलेबस के सीक्वेंस में चला हूं लार्जली, लेकिन आप उस स्लाइड्स को स्किप करके थेरीज पे भी पहले जा सकते हैं, या चाहे तो सिर्फ डेफिनेशन वाला हिस्सा पहले पढ़ लें और उसके बाद थेरीज पे चले जाए, ताकि आपको बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन पता चल जाए, देन जस्ट जंप स्ट्रेट टू द थेरी पार्ट। और फिर थेरीज की एक दफा जब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग हो जाए और थेरीज के ऊपर आप अपनी रिसर्च भी कर लें और नोट्स भी बना लें और उनको पढ़ लें, उसके बाद फिर बारी बारी आप दूसरी एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस पे। इसमें मैंने यहाँ ये भी लिखा है कि रिसर्च मेथड्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस और फोकस आपका होना चाहिए, आपको करना चाहिए, और वो बहुत अहम अपनी जगह भी है। तो थेरीज और रिसर्च मेथड्स, थेरीज के साथ थेरीज एंड थेरिस्ट्स both together, and research methods. Once you are very well grounded in these two things, then you start looking at other parts of the syllabus with a view कि आपने जब अपने नोट्स बनाने हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ द सिलेबस के, तो उसमें आप थेरीज को उसके साथ कनेक्ट करें। हाँ, एक मसला है कि मैंने अभी स्लाइड्स को या इस कोर्स को नियर पेयर पे ऐसे नहीं पढ़ाया। एक लिमिटेशन है जो मैं खुद बता रहा हूं। मैंने टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया, मैंने थेरीज को अलग से पढ़ाया, मैंने थेरीज को बाकी पार्ट्स ऑफ द सिलेबस से कनेक्ट नहीं किया। सो यू वुड हैव टू डू दैट एफर्ट योरसेल्फ। आई टेल यू दिस कि अच्छा आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जी मार्गरेट मेड ने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में ये बात की है, तो जब मुझे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का सवाल आएगा तो मैं उसमें मार्गरेट मेड को साइट कर सकता हूं या कर सकती हूं। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। तो अगर आप थेरी का सवाल नहीं भी अटेम्प्ट करते, बाकी पार्ट्स ऑफ द सिलेबस का भी सवाल अटेम्प्ट करते हैं, तो थेरी को साइट करना है आपने बार 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 बार। थेरिस्ट के नामों को साइट करना है आपने, उनकी जिंदगी को साइट करना है, उनकी पोजिशनैलिटी क्या थी, उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन थे, ये बार बार साइट करना है। और उसके साथ लिंक करना है अपने, लेट्स से कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का सवाल है तो मैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के सवाल को लिंक करूंगा कि मार्गरेट मेड ने जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरी ये दी थी, वो क्यों दी थी, उसका अपना बचपन कैसे गुजरा था, उसकी जिंदगी क्या थी, वो खुद किस कम्युनिटी में बड़ी हुई थी। तो ये बात बहुत अहम है। तो इसको हम कहते हैं रिसर्च के लैंग्वेज में पोजिशनैलिटी। रिसर्चर की अपनी पोजिशनैलिटी क्या है, या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। एनीवेज, सो कटिंग टू द चेज हियर, मैं नहीं चाहता, मेरे यूजुअली सेशंस 2-2 घंटे के हो जाते हैं। आई वांट टू रैप दिस वेरी क्विकली। सो लास्ट थिंग्स, आखिरी बात जो मैंने अभी तक नहीं की, एक बात मैं कर चुका हूं कि जार्गन इंपॉर्टेंट है। एंथ्रो की एक अपनी बड़ी थिक जार्गन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते होंगे कि अक्सर लोग वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स, तीनों वर्ड्स हैं, इन तीनों की सेपरेट डेफिनेशंस हैं। ये बड़ी डिस्टिंक्ट किस्म की कैटेगरीज हैं या टर्म्स हैं विद इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, लेकिन इनको आम इंसान इनको इंटरचेंजेबली यूज करता है कि यार तुम्हारा ये कल्चर नहीं ना है, या तुम्हारी ये वैल्यूज नहीं ना है, या तुम्हारे ये नॉर्म्स नहीं ना है, जो हम रोजमर्रा की जुबान में ये तीनों को इंटरचेंजेबली अमूमी तौर पे यूज करते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो एंथ्रोपोलॉजी जब आप करेंगे तो एग्जाम में आपको बड़ा केयरफुल रहना है कि आप इनको इंटरचेंजेबली यूज ना करें। वैल्यूज शुड मीन वैल्यूज, कल्चर शुड मीन कल्चर, नॉर्म्स शुड मीन नॉर्म्स। So you have to be really cognizant of the very fine distinctions between these anthropology terminologies. तो एक तो उसके बारे में केयरफुल रहें जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो पे वेरी स्पेशल अटेंशन टू दीज टर्मिनोलॉजीज एंड व्हाट दे मीन। और अगर मैंने कहीं अपनी स्लाइड्स में उनकी मीनिंग्स को नहीं समझाया तो कोई डिक्शनरी या गूगल को साथ रखें और अपने नोट्स का उसको उन डेफिनेशंस को हिस्सा बनाते जाएं। फिर नोट्स बनाते वक्त मैंने कुछ डायग्राम्स अपनी स्लाइड्स में ऑलरेडी डाली हुई हैं जब आप ये कोर्स लेंगे, लेकिन डायग्रामिंग खुद करें। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है डायग्राम से तो आदत डालें। आपको करंट अफेयर में भी डायग्राम्स बनानी चाहिए, इस्लामियात में भी बनानी चाहिए। जैसे कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को इस्लामिक स्टडीज में कहता हूं कि भाई मक्का और मदीना का मैप आपको याद होना चाहिए। आप अगर बैटल ऑफ बदर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप बताएं कि किस लोकेशन पे एग्जैक्ट हुई थी। बैटल ऑफ ओहद कर रहे हैं तो बताएं
आपको सूराज और आयत कुछ ना कुछ जगहों पे अरबी में भी लिखनी है, उनकी अंग्रेजी ट्रांसलेशंस भी लिखनी है, और साथ मैप्स भी बनाने हैं। एक 12 नंबर के जवाब में और एक 16 नंबर के जवाब में सिर्फ यही फर्क है। इस्लामिक हिस्ट्री इटसेल्फ जो है वो हर बंदा लिख लेता है। मोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू राइट इट। सिमिलरली एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उसकी हेडिंग्स हर बंदा बना लेगा, पर आपने कहाँ पे डायग्राम फिट करनी है, इसकी जजमेंट एक तो डेवलप करें और डायग्रामिंग की कंफर्ट डेवलप करें। कुछ लोग बड़ा हेजिटेंट होते हैं डायग्राम बनाने पे कि अच्छा सर कहाँ डालूं, कैसे बनाना स्टार्ट करूं। जितनी ज्यादा बनाएंगे उसके साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे। तो इसमें जो डायग्राम्स मैं क्यों कहता हूं कि अहम है, क्योंकि इसके अंदर ना इंटरकनेक्शंस बहुत हैं। एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शंस हैं, तो उन इंटरकनेक्शंस को अल्फाज में समझाना मुश्किल है, उनको डायग्राम के थ्रू समझाना ज्यादा सहल होता है, ज्यादा आसान होता है, ज्यादा मुफीद होता है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्टली उस देख के समझ जाता है कि आप पूरे कैनवस को अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसके सारे आपस में इंटरकनेक्शंस यानी रिलेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सब्जेक्ट जनरली बड़ा रिलेशनल है, और वो रिलेशन बेस्ट डिपिक्ट होता है थ्रू रिलेशनल डायग्राम्स, लाइक हायरार्किकल डायग्राम्स जैसे बनती है ना, जैसे कोई किसी कंपनी का ऑर्गेनोग्राम होता है विच इज अ हायरार्किकल डायग्राम, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम हायरार्किकल डायग्राम्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो चूंकि ये सब्जेक्ट बहुत रिलेशनल है, इसमें थेरीज भी आपस में रिलेट करती हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, शायद जो मैंने अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए उसमें मैंने कुछ डायग्राम्स भी बनाई हैं, और जो मैंने लॉन्ग नोट्स दिए आपको उसमें तो बहुत डायग्राम्स होंगे, उसमें मैप्स भी होंगे, उसको भी जरूर देखिएगा। तो और स्लाइड्स में भी मैंने कुछ डाली है, तीनों सोर्सेज में मैंने डाली है कुछ ना कुछ इक्का दुक्का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि मैं किस तरह की डायग्राम्स बनवाना चाहता हूं या बात कर रहा हूं। तो तीन चीजें, थेरीज, रिसर्च मेथड्स पे ग्राउंडिंग, और उनको पहले प्रिपेयर करें, उनको अप्लाई करें बाकी पार्ट्स ऑफ द सिलेबस पे। दूसरी चीज, बहुत अच्छी तरह जार्गन को अंडरस्टैंड करें, फाइन डिस्टिंक्शन है उसमें। तीसरी चीज, rely a lot on diagrams, a lot on diagrams. These are the only three mantras according to me to do very well on anthropology. So I'll stop here. If you guys have questions, let me look at the chat. If you guys have questions, I'll answer them very quickly. जी, फाइका ने पूछा है 2025 का पेपर डिस्कस करेंगे। फातिमा ने पूछा है क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ। फातिमा कह रही है मैं बैचलर्स कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी में। चेंजिंग ट्रेंड्स नीलम ने पूछा था, मैं आंसर कर चुका हूँ। फातिमा ने मुझे सेकंड किया, उन्होंने कहा मैं चौथे सेमेस्टर में एंथ्रोपोलॉजी की डिग्री में, मेरी क्लास में सिर्फ 8 स्टूडेंट हैं। थैंक यू फातिमा फॉर सेकंडिंग मी। अरीका मंसूर कह रही हैं 2024 पेपर एंड रिजल्ट मेक इट एन एवरेज पेपर इट्स कोर्स अराउंड 55 to 60। अरीका आप जरूर, मैं चाहूंगा कि आप मुझे, मेरा गूगल पे हर जगह ईमेल एड्रेस होता है, प्लीज सेंड मी 5 to 10। आपने अब मुझे भेजनी है डीएमसी सीरियस कैंडिडेट की, और मैं डीएमसी पूरी देखूंगा। मैं ये नहीं चाहूंगा कि उस कैंडिडेट के बाकी सब्जेक्टों में भी 40-50 नंबर हैं ऑप्शनल्स में, और उसके अगर 55-60 आ गए एंथ्रोपोलॉजी में तो मेरे लिए वो 80 मार्क्स ही हैं। और अगर वो ऐसा कैंडिडेट है कि वो बाकी ऑप्शनल्स में 65-70 ले रहा है और मेरे ऑप्शनल में उसके 55-60 हैं, देन आई विल बी वरीड, देन ऑफ कोर्स आई विल बी वरीड एंड देन आई विल 100% एग्री विद यू। वेयर कैन आई गेट योर नोट्स? नोट्स सारी चीजें जो मैं साइट कर रहा हूँ वो सारी नियर पेयर के इस कोर्स का हिस्सा हैं। अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब फॉर द कोर्स। आप उसके लिए नियर पेयर से रब्ता करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, कोर्स सब्सक्राइब करें, तो आपको सारे सोर्स मिल जाएंगे। उनके पास बहुत सारे आई थिंक डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। आई डोंट नो मच अबाउट देम बट यू हैव टू टॉक टू द नियर पेयर एडमिनिस्ट्रेशन। आप उन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, देन यू कैन एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। आई एम मिस्ट्री ने भी पूछा है और फातिमा ने भी पूछा कि नोट्स कैसे ले सकते हैं, या आप वही सवाल आप लोग पूछते हैं ऑन अ लाइटर नोट कि आप एक दुकान पे जाते हैं पिज्जा लेने, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि आप पिज्जा कैसे ले सकते हैं, पैसे देते हैं और पिज्जा ले लेते हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वही जवाब यहाँ भी है आई थिंक, हम लोगों का भी। आई मीन नियर पेयर
I'm sure that they have market competitive rates, so they're not. None of us want to squander our students, but at the same time, I mean, it's a commercial undertaking also, so you guys need to understand that. I'm very happy to help. एंथ्रो के अलावा, बिकॉज फॉर एंथ्रो आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद नियरपेयर, आप लोग मुझसे वैसे बाकी सीएसएस के लिए राब्ता कर सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट के लिए राब्ता कर सकते हैं। मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ वो सब्जेक्ट, पर मैं जनरली आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एंड आई डू इट फॉर फ्री। आई डोंट चार्ज एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स एनीथिंग, बट फॉर एंथ्रोपोलॉजी यस, यू नीड टू सब्सक्राइब फॉर माई कोर्स एंड बाय इट फ्रॉम नियरपेयर। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी साहब ने कहा है कि ये हमें भी पता है कि पे करना होता है। चले, आई डेंट गिव यू वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आई नो दैट। लेकिन नोट्स कैसे मिलेंगे, मुझे मैं समझा नहीं कि इस सवाल का मतलब क्या है। अलग से मिलेंगे कि नहीं? अलग से मिलेंगे से मतलब आपका क्या है कि वो क्या डाउनलोडेबल है कि नहीं? ये मुझे नहीं समझ आई। अलग से मिलेंगे यानी नियर पेयर हैज अ पोर्टल, उसके ऊपर सारी रिसोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। और नियर पेयर वाले ये जरा बताइए कि आपने जो नोट्स रखे हैं वो क्या डाउनलोडेबल है? नहीं, नियर पेयर ने लिखा है कि डाउनलोडेबल नहीं है। तो आप उसको, क्योंकि प्लेजरिज्म के और लोग फिर एक दूसरे से ग्रुप्स में शेयर करते हैं, इसलिए नियर पेयर की मजबूरी है कि वो आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स नहीं देते। बट आप उसको दिन में चाहे 10,000 बार खोलें, 10,000 बार एक्सेस करें, एक एक स्क्रीन पे आप जितना मर्जी टाइम लगाएं, बट आप उस पीडीएफ को अपने डिवाइस में सेव नहीं कर सकते, बट यू कैन ओनली ओपन दैट इन द सिस्टम। ठीक है जी। तो लेकिन आपको जरूरत नहीं है डाउनलोड की, जैसे मैंने कहा, यू डोंट नीड दैट व्हाट आई हैव रिटन। आपने उससे अपने नोट्स बनाने हैं, और एक एक स्क्रीन को आप आधा आधा घंटा खुला रखें, बेशक जब तक आप लिख रहे हैं खुद, और फिर अगली स्लाइड पे मूव करें या अगले पेज पे मूव करें। तो देयर इज अनलिमिटेड एक्सेस टू दोज डॉक्यूमेंट्स इन देयर सिस्टम, बट the only thing you cannot do is you cannot download it. आई होप नियर पेयर मैं ठीक समझा रहा हूँ। सॉरी, मुझे ये लॉजिस्टिकल क्वेश्चंस हो रहे हैं, बट what if we want to give mocks? आई थिंक नियर पेयर अलग से मॉक्स लेता है। चैट में बताइएगा जी हमारे नियर पेयर के रिप्रेजेंटेटिव साहब के, आप लोग मॉक्स ले रहे हैं, आजकल भी लेते हैं, और मॉक एग्जाम्स क्या सेपरेट होते हैं और क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये चैट में आप लोग देखिए, वो शायद आपको जवाब दे रहे हैं। और कोई ये सब वो सवालात हैं जो आप नियर पेयर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं जब आप उनसे राब्ता करेंगे टू गेट द कोर्स। और यहाँ पे किसी ने ये बात पूछी थी कि वो लोगों को फेल कर रहे हैं, और आपके हमने स्लाइड्स, किसी साहब ने माजी में ये कोर्स लिया है, तो मैं इस कोर्स के अंदर इस वक्त इन लाइव सेशंस का भी मतलब यही है कि ये सारी वीडियोस कोर्स का हिस्सा बने आहिस्ता आहिस्ता, और हम एक मैसिव एफर्ट कर रहे हैं कोर्स को। नेचुरली आप हर साल अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन आप 2-3 साल बाद अपडेट करते हो, और आप थोड़े से अगर कोई ट्रेंड चेंज हो भी रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उनको आप इनकॉर्पोरेट करें, और कोर्स को साथ साथ यू कीप ट्राइंग टू फ्रेशन इट अप। सो दिस इज एन एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू फ्रेशन अप द कोर्स, और हम कंटिन्यूसली इस साल उसको फ्रेशन अप करते रहेंगे। चैट में उन्होंने लिखा है जी, उन्होंने आपको नंबर प्रोवाइड किया है चैट में, जिस पे आप मॉक्स के लिए बात कर सकते हैं। सो बिल्कुल नियर पेयर मॉक एग्जाम्स लेते हैं, प्रेपरेटरी एग्जाम्स लेते हैं, दे आर ग्रेडेड एंड चेक्ड बाय इंस्ट्रक्टर्स। चलें जी, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। आई हैव ऑलरेडी गॉन overboard when it came to my time allocation. I think we've been talking for more than an hour or so. Thank you so much, everybody, for joining. I hope you guys take the course and like it. Stay tuned. I'll be doing many webinars and live sessions in the next few months. Happy preparing for CSS. Bye bye.
एंड कर दें जी लाइव सेशन।